Chapter 11 had devotion towards the Almighty. The above pictures must have made you wonder, when did people start praying and singing religious songs in this way? This deep devotion towards God is the gift of the Bhakti and Sufi movements that started in the 8th century. Let us take a peek into that era and understand how all this reached us. भक्ति की विविध रीति। आपको इस पिक्चर्स में देख के ऐसा विचार आया होगा कि इस तरह पूजा अर्चना करने के नियम और भजन गाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई होगी। भगवान के प्रति इस तरह प्रेम या गहन भक्ति 8वीं शताब्दी में उद्भुत भक्ति और सूफी आंदोलनों की हमें मिली हुई भेंट है। तो फिर चलो हम सब उस समय में एक नज़र करें और जानें कि वर्तमान समय में होती व्यक्ति पूजा एवं गाए जाते सूफी गीत हम सबके पास किस तरह पहुँचे। इन ओल्डन डेज common people stayed away from education. Traditionally, members of the working class underwent vocational training. People were religious but superstitious, but was also widely during that time. Due to this, advantages was taken by many opportunities. People were not as scared of kings as much as of religious heads and sons. Religion became superficial, idol worship had become widespread. Though people believed in and respected religious books like the Vedas, Purans, etc., they were ignored about the main philosophies. They propagated charity was considered a noble deed. Hindus and Muslims considered charity as a part of their religious belief. पहले के समय में सामान्य लोग शिक्षा से दूर रहते थे। व्यावसायिक शिक्षा पारंपरिक रूप से कारीगर वर्ग के लोगों को प्राप्त होता था। धार्मिक आस्था पारंपरिक थी। लोगों में अंधश्रद्धा का प्रमाण ज़्यादा था। लोग राजाओं की आज्ञा से उतने नहीं डरते जितने धर्माचार्यों और साधु संतों से डरते थे। कई अवसरवादी लोग अंधश्रद्धा का ज़्यादा दुरुपयोग करते थे। धार्मिकता सिर्फ बाह्याचार बन गई थी। प्रतिमा पूजा घर घर पहुंच चुकी थी। वेद पुराण इन सभी धार्मिक ग्रंथ के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना थी, लेकिन सारा समाज उन ग्रंथों की मूलभूत विचारधारा से अपरिचित था। दान पुण्यप्रद माना जाता। हिंदू और मुस्लिम दान को धार्मिक जीवन का एक अंग मानते थे। Ghost spirits, apparition, etc. were believed in and even worshipped. A few superstitions also become widely spread among the people. True faith had lessened. Some opportunist priest, Maulvis, Sant, witch doctors, etc. started taking advantage of the ignorance of the people and their blind beliefs to make their own lives more comfortable and luxurious. Let us learn about the Bhakti movement that started during this period. भूत प्रेत भैरवी आदि की श्रद्धायुक्त पूजा होती थी। कुछ अंधश्रद्धाएं लोगों ने स्वीकार ली थी। धर्म भावना कुंठित हो चुके थे। कई पंडित, मौलवी, साधु, ओझे आदि अवसरवादी लोग ऐसी अंधश्रद्धा का फायदा उठाकर अपने जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त करते थे। इस समय काल में समाज में जो भक्ति आंदोलन हुए उनके बारे में हम जानेंगे। You have already learned about the advent of Muslim during the Sultan era in the previous chapters. Though they spread Islam in India, Hinduism remained the main religion and retained its status.
Old religions felt the need to spread awareness to remove ignorance. For this, the saint started a different religious revolution in religion, culture, etc. Let us learn about those sant now. इनके अगले चैप्टर में हमने देखा था सल्तनत एरा के बारे में जाना था। सल्तनत काल में इस्लाम धर्मी सुल्तानों ने भारत में प्रवेश किया, इसलिए इस्लाम का प्रचार बढ़ा। फिर भी हिंदू धर्म ने प्रमुख धर्म के रूप में स्थान बना रखा। हर एक धर्म में एक जागृति की ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसने धर्म में व्यापक अंधकार को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन संतों ने जागृति के लिए एक अनोखा धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया। चलो फिर इनके बारे में जान लेते हैं। वल्लभाचार्य was born in 1479 CE in Champaran in a Telugu Brahmin family. He followed Vaishnav, the religion of his family. He studies the Vedas, Vedanta, Darshan, Sutras, Dharma Shastra, Purans and history in depth in Banaras. He travelled around the whole world to propagate his religion beliefs. He went from Rameshwar to Haridwar and from Dwarka to Jagannath Puri thrice to promote the Pushti marks. During his pilgrim, he organized Srimad Bhagavad Katha, and the places where these were organized is known as Baitak. According to him, Brahma is a pure and unbounded soul, and Krishna is the only Purna Purushottam Parabrahma. He therefore felt that bhakti was the only way to seek freedom from the cycle of birth and death and to attain salvation. This religion could be followed by anybody without any distinction of caste, color or creed. Thus, Vallabhacharya's importance and contribution in the bhakti movement is immense. यहाँ पे वल्लभाचार्य जी की बात की गई है। इनका जन्म बिहार के चंपारण में सन 1479 में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैष्णव धर्म उनका कुल धर्म था। उन्होंने बनारस में रहकर वेद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने संपूर्ण भारत में यात्रा करके अपने धार्मिक विचारों का प्रचार किया। रामेश्वर से हरिद्वार और द्वारका से जगन्नाथपुरी तक के तीर्थ स्थलों में 3-3 बार उन्होंने यात्रा की थी। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था। यात्रा दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा और पारायण की। आज ये सारे स्थल बैठक के नाम से पहचाने जाते हैं। उनके मतानुसार ब्रह्म शुद्ध और अद्वैत है। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने का और परमात्मा को पाने का उत्तम मार्ग भक्ति है, और ये भक्ति किसी भी जाति पाति या वर्ण के भेद के बिना सभी मनुष्य कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन में वल्लभाचार्य जी का विशेष महत्व दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु was the last guru of preacher in the Acharya tradition in Vaishnavas. He was born in 1485 CE in the famous educational place Navadip in Bengal. He became well known because of his love for meditation. The depth of his devotion knew no bounds. He popularized the chant of the Hare Krishna Maha Mantra within a short span. This mantra spread all over Bengal. People of any caste would join his
Kirtan Mandali. People even started having kirtans in their homes. He spread the message of Krishna Bhakti in different corners of different states. He propagated this sect without any distinction on the basis of caste, color, and creed in such a way that it created an brotherhood among the people. He asked the people to pass their days in God's service and chant His name. चैतन्य महाप्रभु जी की बात की है। वैष्णव धर्म के आचार्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु अंतिम है। उनका जन्म बंगाल में सन 1485 में विद्याधाम नवद्वीप में हुआ था। अपनी प्रेम समाधि के लिए वे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी भक्ति की मस्ती की कोई सीमा न थी। हरे कृष्णा की धुन लगाकर वे नगर में घूमते रहते थे। जाति पाति के भेद बिना लोग उनकी कीर्तन मंडली में शामिल हो जाते थे। बहुत ही कम समय में उनका हरि बोल का मंत्र बंगाल में गूंजने लगा। घर घर में कीर्तन होने लगी। देश के कई प्रदेशों में घूमकर उन्होंने श्री कृष्ण की प्रेम युक्त भक्ति की धारा बहाई। उन्होंने जाति पाति के भेद का खंडन करके मानव मात्र के प्रति भाईचारे को विशेष महत्व दिया। प्रभु के नाम स्मरण, कीर्तन और सेवा में रात दिन मस्त रहने के लिए लोगों को बताया। गुरु नानक, he went so Sri Lanka, Arabstan and Iran. He believed man is first a human being and then a person of a particular caste. There is only one God and everyone is equal for him. गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 में पंजाब के लाहौर के नज़दीक तलवंडी गांव में युवावस्था में ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। सतनाम का उपदेश देने के लिए वे निकल पड़े। One can attain real knowledge and can know him, and one has to seek the shelter of God in order to remove ignorance. Satnam is accepted as a symbol of God, and one must continuously chant God's name. He also believed that more than merely chanting His name, it is important to consider everyone equal, and only then does it become religion. People of different religions become His followers. They are known as Sikh. His preaching are collected in a book titled Guru Granth Sahib. युवा अवस्था में ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। सतनाम का उपदेश देने के लिए वे निकल पड़े। उन्होंने संपूर्ण भारत में यात्रा की। इसके अलावा श्रीलंका, अरबस्तान, ईरान ऐसे देशों में भी उन्होंने यात्रा की थी। उन्होंने कहा, मानव प्रथम मानव है, फिर बाद में वह किसी जाति का बनता है। ईश्वर एक है और उसके दरबार में कोई भेद नहीं है। ईश्वर स्वयं प्रागट्य है और वह ही गुरु एवं सच्चा साहिब है। सद्गुरु की कृपा होने से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उसे जाना जा सकता है। अज्ञानता दूर करने के लिए परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। उन्होंने ईश्वर के प्रतीक के रूप में सतनाम का स्वीकार करके उसका लगातार स्मरण करने का उपदेश दिया। मात्र ईश्वर का नाम लेने से धर्म नहीं बन जाता। सच्चा आदमी वह है जो सभी मनुष्यों को समान समझे। पंजाब में सभी संप्रदाय के लोग उनके शिष्य बने। उनके अनुयायी समय बीतने पर सिख कहलाए। उनके उपदेश को ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया गया। स्वामी रामानंद, इन दी सेकंड हाफ ऑफ द 14th century, Swami Ramananda proved to have made a very strong and noteworthy contribution to the Bhakti movement. He preached his ideals and beliefs in languages which helped spread Vaishnava Bhakti. He propagated the main ideas of the scholars
adding his own inputs if necessary, and spread the Bhakti revolution in North India. Kabir and Raidas were his followers. यहाँ पे स्वामी रामानंद के बारे में बताया गया है। 14वीं शताब्दी में भक्ति के सबल और सफल माध्यम के रूप में रामानंद उभर आए। उन्होंने लोक भाषा के माध्यम के द्वारा वैष्णव भक्ति के द्वार खोल दिए। पूर्व विद्वानों ने जो कुछ कहा और उसके सारे श्रेष्ठ तत्वों का स्वीकार करके उनमें कुछ और डालकर रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जगाया। कबीर और रैदास जैसे समर्थ व्यक्ति उनके शिष्य बने। यहाँ पे कुछ सोचने जैसा है। यदि संतों ने समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्य न किए होते तो समाज में कैसी स्थिति बन जाती। नरसिंह मेहता, द मोस्ट रिन्यूड गुजराती पोएट is Narsingh Mehta, who was born in the Nagar family. He spent time in the company of Sant from his childhood days. Even though he got married, he had no attachment with his family. He was always engrossed in Krishna Bhakti. He was deeply affected when he saw people discriminating. He saw people others on the basis of caste, color, creed, etc. He believed पक्षा पक्षी त्यान नहीं परमेश्वर समदृष्टि ने सर्वे समान. Where there is equality, there is God. Using his own example, he proved that a person having faith and devotion towards God can overcome all problems in life. His knowledge, devotional songs and Prabhatya deeply affected the Gujarati community. You must have heard of his devotional song. नरसिंह मेहता, गुजराती भाषा के आदि कवि नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ की नागर परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही साधु संतों की संगति में वे रहते थे। सांसारिक होने के बावजूद भी उन्हें संसार का रंग लगा ही नहीं था। कृष्ण भक्ति में वे इतने लीन रहते थे। उन्हें जाति पाति छुआछूत से पीड़ित समाज को देखकर दुख होता था। उन्होंने कहा, पक्षा पक्षी वहाँ नहीं परमेश्वर समदृष्टि को सर्व समान। प्रभु में श्रद्धा और उसकी भक्ति की सहायता से आदमी किस तरह अनेक विपत्तियों दूर कर सकता है, उसका उन्होंने अपने जीवन द्वारा बताया है। उनके ज्ञान भक्ति के पूर्ण पद और प्रभावित ने गुजरात के मानव समुदाय पर गहरा असर छोड़ा है। यह सॉन्ग आपने सुना होगा। वैष्णव जन तो तेनेरी कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेनेरी कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेनेरी कहिए। There is no accurate information about Kabir and his family. However, through word of mouth, this is all the information obtained about him. He had a pleasing personality. He was married and worked as a weaver. He was not educated himself but understood everything about religion and sects from the discussion with Sant and hermits. He started propagating this fact through verses and Sakhi, which had a very deep impact on people. He practiced what he preached and lived his life according. कबीर जी के जन्म और उनके परिवार के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है।
जिंदगी भर गृहस्थ रहकर भी अपना जुलाहे का व्यवसाय चलाते रहे। खुद पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी साधु संतों और फकीरों के साथ के सत्संग में धर्म और संप्रदाय को समझ चुके थे। इस सत्य को उन्होंने पद और साखियों में रखना शुरू कर दिया, जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव हुआ। वे जो मानते थे वैसा कहते थे और उसी प्रकार का जीवन जीते थे। According to him, there is only one supreme being who is known by different names like Sahib, Allah, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा etc. उनके मतानुसार ईश्वर एक है और सर्वोत्तम है। उन्हें साहिब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्म आदि भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर महान प्रेरक, प्रोत्साहक और प्रचारक होने के अतिरिक्त सांस्कृतिक समन्वय की सार्वजनिक भूमिका के स्थापक थे। वे एक नूतन युग का निर्माण कर सके। रैदास was born in Kashi. His father's name was Raghu and mother's name was Durvinia. He was benevolent and kind from his childhood days. He would always help selflessly and that became his regular practice. He treated everyone equally. He considered fighting in the name of religion futile and meaningless. Mirabai was impressed by Raidas' devotion and thus became his followers. Sant Kabir and Raidas were the disciples of the same preacher. रैदास का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रघु और माता का नाम दुर्विन्या था। प्रारंभ से ही रैदास परोपकारी और दयालु थे। अन्य की सहायता करना ये उनका स्वभाव बन गया था। सभी के प्रति वे समभाव रखते थे। भक्ति के नाम पर होते विवाद को वे अर्थहीन मानते थे, मीनिंगलेस मानते थे। भक्त कवियत्री मीराबाई रैदास की भक्ति से प्रभावित हुई और उनकी शिष्य बनी। संत कबीर उनके गुरु भाई बने। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाति जाति में जाती है जस केलन के पात। रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जाती। संत रैदास के ऐसे भक्तिपूर्ण दोहे की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। सभी में हरि है और सभी हरि में है। लोग इनका अधिक आदर करते थे। उनके नाम पर से रैदासी संप्रदाय हुआ। गुजरात में इस रविदासी संप्रदाय के बहुत से अनुयायी देखने को मिलते हैं। भक्त पुंडरीक established the devotion of Vithalnath in Maharashtra in the 11th century. After that, from the 13th to 16th century, the above mentioned devotees propagated the bhakti movement in Maharashtra. महाराष्ट्र में 11वीं शताब्दी में हुए भक्त पुंडरीक ने विठलनाथ की भक्ति का महात्म्य बताया। बाद में 13th से 16th तक उपयुक्त संतों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र में भक्ति का नाद गूंजित किया। There were many sant and poets in Maharashtra between the 13th and 17th century who wrote many songs that inspire people even today. The most famous among them was Tukaram, who was appreciated by people for his devotion. All these sant oppose rites and rituals, superficial and caste distinction. They also believed that a person can worship God without renouncing the world. One must help the needy and serve them, as real devotion is to solve the problems of the needy. He gave 13वीं से लेके 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में कई संत और कवि हो गए
जिनके लिखे गीत आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनमें प्रमुख थे तुकाराम, जिनकी भक्ति हर एक लोगों के हृदय में बसती थी। इन सभी संतों और कवियों ने कर्मकांड, पवित्रता का आडंबर और जन्म संबंधित सामाजिक विषमता का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि संसार में रहकर भी प्रभु भक्ति हो सकती है। उनके द्वारा नए मानवतावादी विचारधारा का उद्भव हुआ। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु जी, गुरु नानक जी, स्वामी रामानंद जी, कबीर जी, रैदास जी, नरसिंह मेहता जी और तुकाराम जी, इन सभी ने हमको भक्ति का मार्ग दिखाया। इन सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना भी और इन लोगों ने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया। चैप्टर नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।